السلام علیکم. آج 5 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں علی عابد. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف حکومت کی ڈھٹائی ہے. وزیر اعظم کا ریلیف پیکج بھی جعلی ہے. کراچی میں ادارہ نور حق میں امیر جماعت اسلامی کراچی کی نیوز کانفرنس. کہا حکمران پہلے روپے کی قدر کم کر دیتے ہیں اور پھر مہنگائی کو جسٹیفائی کرتے ہیں. پہلے آپ ڈالر کی قیمت بڑھا دو, روپے کی قیمت گھٹا دو اور پھر اس کے بعد اپنی مہنگائی کو جسٹیفائی کرنے لگو کہ ہمارے یہاں چونکہ ڈالر کی قیمت اتنی ہے تو جب ڈالر کی قیمت آپ بڑھا دیتے ہیں تو آپ کے ایک فیصلے سے ہزاروں ارب روپے کا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر. حافظ نعیم نے حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے کردار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ہم اس موقع پر اپوزیشن کے رول پہ بھی حیران ہیں اور پریشان ہیں. 3 سال سے اپوزیشن مقدمات بچاؤ مہم میں مصروف ہے. الیکشن جو قریب آ رہا ہے تو انہوں نے اب مہنگائی کی بات کرنا بھی شروع کر دی ہے. ورنہ دیکھا جائے تو اپوزیشن کا ایجنڈا بھی عوام نہیں ہے, مہنگائی نہیں ہے, بے روزگاری نہیں ہے. ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ ان کو کس طرح مقدمات سے جو ہے بری ذمہ قرار دیا جائے. حافظ نعیم نے ایک بار پھر کراچی کے لیے بلدیاتی سطح پر میگا سٹی گورنمنٹ اور صوبے کے دیگر اضلاع کے لیے سٹی گورنمنٹ قائم کرنے کا مطالبہ کیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو ٹھٹا کے عوام نے مسترد کر دیا ہے. عوام کا کیا کہنا ہے یہ ہم جانیں گے آج نیوز کے نمائندے امر لال سے. جی بالکل, وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی ہے, جس کے بعد پہلے ہی عوام مہنگائی کا رونا رو رہی ہے اور مشکلات کا شکار ہے. ایک مرتبہ پھر پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل 5 روپے قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے. آئیے عوام میرے ساتھ موجود ہے یہاں پر, جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کیا کہتے ہیں. مزدوری ٹیکسی والا مانو 147 لیٹر پیٹرول ایسا منجو کرا. ایک تو پہلے سے مہنگائی اوپر 10 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یا تو حکومت گرائی جائے یا تو پیٹرول کا سستا کیا جائے. جی یہ تھے جو پیٹرول بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت جو روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہی ہے, جس پر جو مکمل طور پر کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. پورے والا کے شہریوں نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام دشمن قرار دے دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ اب اشیاء خورنوش کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے میاں شاہد سلیم. جی بالکل, حکومت سے چینی کی قیمت جو ہے وہ تو کنٹرول ہو نہیں پا رہی تھی کہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پسنے والی عوام پر رات کے اندھیرے میں ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا. اس بار جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے 145 روپے 85 پیسے اور اسی طریقے سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 142 روپے 62 پیسے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. شہری جو ہے اس حوالے سے ان کے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد آٹا, گھی, دال, چاول سمیت جو پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں انہوں نے عام انتخابات سے پہلے جو کنٹینر پر وعدے کیے تھے اور ان کے جو اقدامات جو ہیں ان سے بالکل جو ہے وہ برعکس ہیں. اور شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان سے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیے جانے والے اضافے کو فی الفور جو ہے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پسنے والی عوام جو ہے انہیں جو ہے کچھ ریلیف مل سکے اور وہ سکھ کا سانس جو ہے وہ لے سکے. جی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے خضر میں مہنگائی آسمان کو پہنچ گئی ہے. تبدیلی سرکار نے عوام سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا ہے. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے دردانہ شیر. جی بالکل, رات کی تاریکی میں حکومت پاکستان نے پیٹرول بم گرا دیا تھا, تو دن کے وقت میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء خردنوش پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس وقت مہنگائی آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے. غریب عوام کو ایک وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اس وقت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گاکوج میں موجود ہوں. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء خردنی کی قیمتوں میں 5 روپے اضافہ ہو گیا ہے. چینی 150 روپے کلو کے حساب سے یہاں پر فروخت کی جا رہی ہے, جبکہ گیس کا سلنڈر جو پہلے 2600 کا مل رہا تھا اب اس کی قیمت 4000 ہو گئی ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لائی جائے اور اشیاء خردنی کی جو خوشربا قیمتیں ہیں ان کو بھی کم کیا جائے تاکہ عوام کو ایک وقت کی روٹی دستیاب ہو سکے. جی خانوال میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کی زندگی اچیرن بنا دی ہے. شہریوں نے حکومت سے اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے اشرف. جی بالکل, خانے وال میں بھی مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے. اب اشیاء خورد و نوش کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے نے شہریوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں. بے پناہ مہنگائی کی وجہ سے وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے
شہریوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے اور شہریوں نے اشیاء خرد و نوش سمیت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی الفور حکومت سے کمی کا مطالبہ کیا ہے. جی جلال پور پیروالا کی عوام نے بھی پیٹرول کی بڑھتی قیمت کو مسترد کر دیا ہے. مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے مظفر ایاز طاہر. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں. تبدیلی سرکار نے ایک بار پھر پیٹرول کا ریٹ بڑھا کر عوام پر بم گرا دیا ہے. عوام جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے. میرے ساتھ کچھ عوام بھی، کچھ شہری بھی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی پہلے اتنی مہنگائی ہے اور دوبارہ اتنی مہنگائی، پھر رات کو پتہ نہیں لگا، صبح اٹھے ہیں پھر اتنا ریٹ 8.5 روپے پیٹرول بتایا، ڈیزل بتایا، اور بجائی کا ٹائم ہے، کیا کریں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. بھائی سب بڑی مہنگائی تھی کہ تو آسان رکھ دیا سے نا بھائی. آج وزیر اعظم نما آ گئے تو بہت مقصد حال کیا، ویسے روزگار اچھا ملے، ویسے سر کاروبار ہے نہیں کہنا، آٹا دانا بالکل کہ نہیں. پیٹرول کا ریٹ چڑھ گیا، ہر چیز مہنگائی بڑی تھی گئی سر. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار کو چاہیے کہ فوری طور پر ریٹ کم کرے تاکہ جو غریب عوام ہے اور جو کسان طبقہ لوگ ہیں ان کو ریلیف مل سکے. جی سانگڑ کے عوام کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی کا طوفان لے کر آ رہی ہے. مہنگائی کے باعث پہلے ہی جینا مشکل ہو چکا ہے. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے عبد الرحمان خاص خیلی. جی بالکل، آئے روز پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے جو عوام کے ہوش اڑ گئے ہیں. میں اس وقت سانگڑ کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں اور جو رات وفاقی حکومت کی جانب سے جو پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اس سلسلے میں آئیے سانگڑ کے شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی والے جو ناراض بھی ہوتے ہیں، فیس بک سے انفرینڈ بھی کر دیتے ہیں ہمیں. تو بہتری اسی میں ہے کہ خاموش رہو. ہر چیز کے دام بڑھ جائیں گے، چینی بڑھ جائے گی، جو جس چیز کی بھی ترسیل پیٹرول کے ذریعے ہے ہر چیز کے دام بڑھ جائیں گے. فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے نا. 2 روپے وہ 6 روپے رات بولا تھا، ابھی انہوں نے 8 روپے بڑھا دیا. اب یہ کون بھرے گا؟ یہ سارا بوجھ غریب آدمی کے پاس جا رہا ہے. عوام نے وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اسے مکمل طور پر ٹھکرا دیا ہے. عوام نے وفاقی حکومت سے اسپیشلی وزیر اعظم سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لے آئی جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے. جی ادھر کندکوٹ کے عوام بھی مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے حضور بخش منگی. جی بالکل، میں آپ کو بتایا چلوں کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات میں رات کے اندھیرے میں اضافہ کیا گیا، اسی طرح آج عوام جو ہے کہ رونا روتے نظر آتی ہے. اس نے مہنگائی کی ہے رات کے اندھیری میں. 1 تاریخ کے ہر اصول ہوتا ہے کہ ہر ماہ کی 1 15 کو جو بڑھنا ہے بڑھائے، لیکن اس نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے. دن بدن جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس کو استعفیٰ دے کر جو اصل وارث ہیں، جو عوام کے وارث ہیں، عوام کے محافظ ہیں، عوام کے پاسدار ہیں، حقوق کی جو پاسداری کرنا جانے، جو اقتدار ہے ان کے حوالے کرے. پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. دال، وہ کھانے کے اشیاء سارے مہنگے ہو جائے تو ہم کیا کریں گے. 150 روپیہ پیٹرول لیٹر ہے، 300 روپے کے 2 لیٹر نہیں ملتے ہیں بھائی. پہلے 100 میں اپ ڈاؤن لگاتے ہیں، ابھی 300 میں اپ ڈاؤن نہیں لگا سکتے. یہی مسئلہ ہے. عوام کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب آپ سے ملک نہیں چلے گا اور آپ استعفیٰ خود دے جائیں، ورنہ اس عوام پر جس طرح سے آپ نے مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے اور دن بدن تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. عوام کی دہائیاں ہیں. جی پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹھنڈول ایار میں عام استعمال کی تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے عبداللطیف قائم خانی. جی اس وقت میں جو ہے شہر کے وقت میں پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوا ہوں. یہاں پر جو ہے موٹر سائیکلوں کی لائن لگی ہوئی ہے پیٹرول بڑھانے کے لیے، لیکن پیٹرول جو ہے عمران خان حکومت نے جو ہے رات کے اندھیرے میں جو ہے بڑھا دیا گیا ہے، جس سے عوام جو ہے شہری بڑے پریشان ہیں. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ پیٹرول حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کچھ آدمی نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، اور پبلک سروس جتنی بھی ہے حد سے زیادہ پریشان ہے. اور تیل مہنگے ہونے سے وجہ سے ہر چیز کو مہنگا کر دیا گیا ہے. آپ نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی وجہ سے جو ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ہر چیز، ہر دکاندار جو یہی کہہ رہا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اس لیے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے قیمتوں کو کنٹرول کرے. جی پیٹرول، چینی سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے پر لاڑکانہ کے شہری بھی پریشان ہیں. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے سلامت ابڑو. جی مہنگائی اس وقت ملک میں بڑا مسئلہ ہے اور حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے. اشیاء خودنوش کی بات کی جائے تو اشیاء خودنوش کی قیمتیں ہیں جو وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں.
चंद रोज कबल जो चीनी की बात की जाए तो चंद की जा रही थी, वही आज जो है 7,100 रुपए में 50 किलो का कट्टा चीनी का फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पहले ही महंगाई के हवाले से आवाम को एतमाद में लिया है, तो जो हुकूमती मशीनरी है, जो इंतजामिया है, उनका कहीं किरदार हमें नजर नहीं आ रहा। हुकूमत को इंतजामिया मौसर इकदाम करे और महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश करे ताकि महंगाई में कमी वाक़ई हो और आवाम को मुश्किल से बचाया जा सके, आवाम को रिलीफ फराम हो सके, ताकि जो अशिया खुदून रोजमर्रा के घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनमें कमी वाक़ई हो और शहरियों को सहूलियात मैसर हो सके। जी। उधर सियालकोट में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ख्वाजा रेहान इसके हवाले से मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अचानक रात को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, सियालकोट का हर शहरी इस वजह से परेशान दिखाई देता है। शहरियों का कहना है जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट महंगी होती है बल्कि अशिया खुदोनोश की और जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जा रहा है। यहाँ मेरे शहरियों से बात हुई है, उनका कहना है जो हमारे बच्चे खासतौर पर स्कूल जाते हैं उनकी जो वैन वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उन्होंने भी अपने किराओं में इजाफा कर दिया है। इस वजह से उनका 2 वक्त की रोटी जो है वो भी दिन ब दिन जो है वो मुश्किल होती जा रही है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करे ताकि महंगाई में जो रोज बरोज इजाफा हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए। हाफिजाबाद की आवाम का हुकूमत से मुतालबा। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो गई है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अंजुम सुहेल। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। इन मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इससे यकीनन जो है गरीब आदमी पे असर पड़ेगा। जरूरियात जिंदगी पहले ही महंगी है, पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है और अब ये जो हुकूमत ने अवाम पे पेट्रोल बम गिराया है इससे यकीनन महंगाई में इजाफा होगा, लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, किरायों में इजाफा होगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी है, उन्हीं से बात करते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे अभी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है हुकूमत को चाहिए कि पहले तो इसे वापस ले, अभी इनके प्राइसेस दोबारा अपनी वापस करे, 130 तक ही एटलीस्ट ले आए। अब मैं जॉब करता हूँ, मेरा फ्यूल एक्सपेंस मंथली तकरीबन 3,000 आता था, अब 4500 यानी कि 1,500 रुपए का इजाफा हो चुका है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो कीमतें बढ़ाई हैं उन्हें वापस लिया जाए क्योंकि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है और अब ये जो कीमतों में इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की, इनसे किराया भी बढ़ेगा और आम आदमी पे इसका बोझ भी बढ़ेगा। जहलम में पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के दाम भी बढ़ गए हैं। शहबाज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता किराए भी बढ़ा दिए। इंटरसिटी 10 जबकि लॉन्ग रूट पर चलने वाली गाड़ियों के किराया में 40 से 60 रुपए इजाफा किया गया है। झेलम से मंडी बहाउद्दीन 20, झेलम से सरगोदा 50, झेलम से लाहौर फीस वाली 60 रुपए किराया बढ़ाया गया है। 450 सरगोदा किराया हो गया है, झेलम का मतलब 10 रुपए लक्ष्य बढ़ा हुआ है, चीनी 150 रुपए किलो है, आटा 80 रुपए किलो है। घर खर्चा पूरा नहीं, रात ना नींदर पाती ना दिहाड़ी, रात किसा गुजरेगी दिन किसा गुजरेगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इसीलिए जो 30 रुपए किराया अभी हमने 40 रुपए कार दिए शहर एरिया। बहुत मुश्किल है जी गुजारा करना। बाहर रिक्शा खड़ा हुआ है, देख लें, सुबह से मैंने 200 रुपया नहीं कमाया होगा और अभी खाली सिर्फ चीनी लेने आया हूँ और देख लें क्या हालात है, बहुत महंगाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आटा, चीनी, घी और दालों के दाम भी मजीद बढ़ने लगे हैं। आटा भी महंगा, घ्यो भी महंगा, चीनी भी महंगी, दाल भी महंगी। क्या करे गरीब आदमी, दिहाड़ भी लभदी नहीं है, काम करने जगह भी मजदूरी नहीं करे लभदी। तो घी जो है वो जनाब ने 100 पहले था 135 से 160 था, अभी 360 तक चला गया। ये गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसने वाली गरीब आवाम ने वजीर आज़म पाकिस्तान से महंगाई के जिन को काबू करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, झेलम। यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि चिनियोट में चीनी की कीमत को कंट्रोल करने में जिले इंतजामिया नाकाम हो गई है। चीनी फी किलो 150 रुपए से तजावुज कर चुकी है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे उमर सज्जाद। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिनियोट में भी चीनी की कीमतें जो है वो बेलगाम हो चुकी है। 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी 150 रुपए में चिनियोट के ओपन मार्केट में फरोख्त होने लगी है। मेरे साथ सब दुकानदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। चीनी मिल ही नहीं रही है, 7,000-7200 बता रहे हैं। वो इधर कस्टमर इतने पैसे नहीं भर रहा है तो इसकी वजह से जाना हम वापस कर रहे हैं, हम मंगवा ही नहीं रहे, स्टॉक भी मिल ही नहीं रहा है।
वो भी बारीक ही है, जो इतनी बड़ी मोटी चीनी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इसी तरह चनियोट के शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से और ज़िले इंतजामिया की जानिब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी जो हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। दूसरी जानिब महंगाई की वजह से चनियोट के शहरी परेशान हो चुके हैं। जी, हवेली लखा की आवाम ने वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे उस्मान अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के एक रिटेल स्टोर पर। यहाँ पर कोई खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज उससे मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। इमरान खान का रिलीफ पैकेज का उसका बहुत शिद्दत से इंतजार था कि गरीबों को बहुत आसरा मिलेगा, मतलब कि महंगाई कम होगी, लेकिन उन्होंने जो कल खिताब किया है उसमें तो उन्होंने महंगाई कम करने की बजाय सबसे ज्यादा महंगाई करने का उन्होंने सोचा हुआ है। चीज़ा महंगिया कर दी है, साढ़े को जड़ा है चीज़ा को चीज ली जाती नहीं हैगी, बच्चे निक्के निक्के भुखे मरदे पे गए। वजीर आजम और वजीर खजाना जो ही बात करते हैं कि महंगाई और होगी तो चीजें मार्केट से गायब हो जाती हैं। गरीब आदमी के लिए किसी भी चीज का मुयस्सर होना मार्केट में नामुमकिन हो चुका है। इधर स्टोर पे आ रहे हैं चीजें लेने, लेकिन जो चीजों के रेट हैं वो हमारी पहुंच से बाहर हैं और इतनी हमारी इनकम नहीं जितना हमारा एक्सपेंस है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे नोटिस लें ताकि आम आदमी की पहुंच में चीजों की रसाई मुमकिन हो। कि आपने सुना कि अवाम का कहना है कि जो वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज है वो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, उन्होंने इसको यकसा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। गुजरात में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर रिक्शा ड्राइवर और गरीब आवाम सरापा एहतजाज बन गए। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे इजाज अहमद शाकिर। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता राज अचानक पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा के बाद आवाम शदीद परेशान है। इस वक्त मैं गुजरात के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ जहाँ पे लोग आ रहे हैं, पेट्रोल भी डलवा रहे हैं और इसके साथ साथ हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो हुकूमत का फैसला है, उसको भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे जी ये जो तेल की कीमतें बढ़ाई गई है। भाई तेल की कीमतें आसमान में पहुँच गई है, तो सवारी बिल्कुल नहीं है, बस फेर रहे हैं गड्डी, तेल साड़ रहे हैं, बच्चे भूखे मर जाएंगे। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल महंगा है, क्या करें, परेशान हाल है। वजीर आज़म साहब से गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए हम गरीबों पर रहम करो, हम गरीबों पर हाल पर रहम करो। छोटे छोटे बच्चे हम लोग कहाँ जाएं। जी जैसा कि आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी, लोग इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो दीगर अशिया ज़रूरिया जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं, इसलिए लोग इंतहाई गमो गुस्से का भी इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे वसीम रियाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल में, जहां पर मुल्क भर की तरह साहिवाल की आवाम ने भी जो है पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा है कीमतों में वो मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई का एक तूफान आ जाता है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इसके बारे में क्या कहना है। जी आप बताइएगा। जी, खान साहब की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आती है। कोई किसी भी महकमे के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। जब पेट्रोल की बारी आती है, जो आलमी मंडी में महंगा हो गया, आलमी मंडी में 1 तारीख को महंगा नहीं हुआ था, तब क्यों नहीं उन्होंने महंगा किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि पहले पाकिस्तान में ये होता था कि साल के बाद बजट आता है, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत और दूसरी चीजों की जो है वो कीमतें बढ़ती थी। अब तो जो है वो महीनों से होते हुए बात जो है वो घंटों पर पहुंच चुकी है कि अभी 1 घंटा पहले कोई रेट होता है, फिर दूसरे घंटे कोई और रेट हो जाता है। जी, रायगढ़ में आलमी इज्तिमा के मौके पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मंजर से गायब हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आलमी तबलीगी मरकज के गेट के बाहर मौजूद हूँ, जो कि आलमी इज्तिमा की वजह से ये आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ट्रैफिक का बेहंगम रश जो है वो नजर आ रहा है। कई घंटों से ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार मंजर आम से गायब है और इसी तरह दूर दराज से आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग की शिकायत भी आम है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि तबलीगी इज्तिमा ड्यूटी पर आने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो मंजर आम से गायब है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग का भी सख्ती से नोटिस लिया जाए। दूसरी जानब इज्तिमा ड्यूटी पर आने वाले तमाम मुलाजमीन को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे अंदाज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें ताकि शुरका इज्तिमा की मुश्किलात जो है वो कम हो सकें। जी, और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आज के साथ रखिए।
वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि वफाकी तरक्याती इदारा CDA के शोबाए स्टेट मैनेजमेंट 2 ने 24 करोड़ रुपए से जायद के वाजबात वाले प्लॉट को 40 लाख रुपए लेकर क्लीन चिट दे दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नबी से। आसिफ, बताइएगा। हाँ, देखिए 24 करोड़ रुपए का एक डिफॉल्टर प्लॉट था 93 इंडस्ट्रियल एरिया आइटम, जिसको इंडस्ट्री का प्लॉट था, उस पर CNG स्टेशन लगाया गया, उस पर 24 करोड़ रुपए कमर्शियलाइजेशन चार्जेस डाले गए। CDA के ऑडिट डिपार्टमेंट ने भी इस पर एतराज उठाया, उसके साथ PAC ने भी इस पर नोटिस लिया हुआ था। उसके साथ साथ ये अदम अदायगी पर प्लॉट कैंसिल हुआ, मालकान हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी जुर्माना बहाल किए बगैर, जुर्माना दिए बगैर बहाली के अहकाम दिए थे कि जुर्माना जब तक नहीं अदा किया जाता बहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद इसको घुमा फिराकर 40 लाख रुपए लेकर क्लीन चिट दे दी गई। उसके साथ साथ इसमें ये है कि इसमें न सिर्फ PAC को और ऑडिट डिपार्टमेंट को मामूल बनाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम को भी नजरअंदाज किया गया, और इस हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास मौजूद है। और इसमें मजकूरा प्लॉट जो डायरेक्टर स्टेट है इस वक्त अनवर खान, उन्होंने तमाम एतराजात के बावजूद इस प्लॉट का ट्रांसफर लेटर जारी किया। तो निचले अमले ने एतराज उठाया था कि सर ये जो है पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा, लेकिन इसमें उन्होंने अपने साइनों से, जबकि डायरेक्टर साइज ही नहीं, उन्होंने अपने साइनों से ना सिर्फ NDC जारी की प्लॉट की, बल्कि उसको ट्रांसफर भी कर दिया। ट्रांसफर की डेट भी नहीं थी, स्पेशल डेट ली गई और इतनी उजलत में ट्रांसफर किया गया क्योंकि PAC में ये मामला ताकि सेटल ना हो उससे पहले इसको कर लिया जाए। और ये 24 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर प्लॉट है, जिसे 40 लाख रुपए देकर CDA के डायरेक्टर स्टेट अनवर खान समेत दीगर जो लोग हैं उन्होंने इसको क्लीन चिट दे दी। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद आपका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में गैर कानूनी तजावुजात और इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। गुलशन इकबाल रब मेडिकल सेंटर से डिस्को बेकरी और बहादुराबाद की मरकजी शाहराह पर कैबिन्स और पथारों समेत दीगर कच्ची और पक्की तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। नाजमाबाद में 3 गैर कानूनी इमारतों को मिसमार किया गया, जबकि गुलबर्ग ब्लॉक 9 में पुराने मकान पर तामीर होने वाली नई मंजिल का काम भी रुकवा दिया गया। बफर जोन में शाहराहों से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। दाऊद खेल में भी अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों से आवाम का जीना दूभर हो गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे खालिद अशफाक। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में महंगाई की लहर बदस्तूर जारी है और खसूसन अशिया खुर्दनोश जिसमें आटा, दाल, चीनी और घी की कीमतें इंतहाई ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। और अगर बात की जाए सब्जियों की तो उसकी कीमतें भी इंतहाई ज्यादा हो चुकी हैं। अब इस सारी सूरत हाल में सार्फिन क्या कहते हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। वो आटा ले, घी ले, चीनी ले, दवाइयाँ ले, दवाइयाँ इतनी महंगी है कोई अंदाजा नहीं है। आई तो है, क्योंकि एक गरीब बंदा जो है ना वो 1400-1500 में किस तरह आटा खरीदेगा। आम आदमी तो बिल्कुल पीछे रह गए। नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं, बहुत बेहतरीन किस्म महंगाई है, हम ये महंगाई का बहुत सामना कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि अशिया खुर्दनोश और खसूसन फलों और सब्जियों की कीमतों को जो है जितनी हद तक हो सके कंट्रोल करे। बालाकोट में महंगाई के खिलाफ नून लीग ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद। जी, मुल्क भर की तरह आज बालाकोट में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की कार पर आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मरकजी जामा मस्जिद बालाकोट सईद अहमद शहीद से जो हुआ है एहतजाजी रैली निकाली गई, जो कान रोड से होती हुई मदनी प्लाजा के पास आकर अख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर यह रैली जो है वो जलसा की सूरत अख्तियार कर गई थी, जिसकी क़यादत जो है वो मुमताज आलमदीन काजी खलील अहमद और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सरदार मोहम्मद यूसुफ कर रहे थे। रैली में साबिक MPA मियां ज़िया रहमान, सईद मदर अली कासम, सईद जुनैद अली कासम के अलावा दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत भी मौजूद थी। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क भर में अदवियात, आटा, डालडा, चीनी और पेट्रोल की कीमतों में बेशबा इजाफा कर दिया गया है। अब मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा था कि हुक्मरान जमात को कोई इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत करे। चारसद्दा में हालिया महंगाई से तंग आकर महकमा तालीम के क्लर्क्स ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। चारसद्दा में महंगाई से हर तबका परेशान है। महकमा तालीम के क्लर्क्स ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया। हम अपने बच्चों को वो तमाम सहूलियात फराहम नहीं कर सकते जो होना चाहिए। एक बाप की हैसियत से मैं अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस महंगाई की तनासब से हमारी और आम शहरी की हुकूक को पामाल न किया जाए। मैं इस हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, आप रोज बरोज महंगाई बढ़ाते हो, कभी मुलाजिम की या आम शहरी की के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? कुछ नहीं किया है। मुतासरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है।
आरिफ वाला में एलपीजी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने अवाम को परेशान कर दिया है। राना मोहम्मद नफीस रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला में भी अवाम पर महंगाई के वार जारी हैं। एक माह के अंदर एलपीजी का रेट आसमान पर जा पहुंचा है। 1800 रुपए में फरोख्त होने वाला एलपीजी सिलेंडर 2550 रुपए तक जा पहुंचा है। एलपीजी के रेट्स में होशरबा इजाफा होने से शहरियों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। अब ये 1 महीने के बाद आके यही गैस 1 किलो 230 रुपए किलो भर रही है, तो हम बताएं कि अवाम कहाँ से जाए और किस तरह ये सब कुछ मैनेज करे। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, एलपीजी की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और अवाम का जीना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरी जानब शहरियों को सुई गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जबकि एलपीजी की कीमत शहरियों की कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी है। शहरी कहते हैं हुकूमत एलपीजी की कीमतों में वाज़े कमी लाए ताकि आम आदमी आसानी के साथ एलपीजी खरीद सके। आज 5 में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ रहिए।